I had started reading Bhagavad Gita when I was like what 6 7 year old. मतलब जब से पढ़ना इंसान तो I used to have my own versions of understanding of from it, and you used to implement it and all. So I think spirituality saved me. Otherwise मैंने बहुत बारी मरने की भी कोशिश की है. I tried committing suicide. I have. Hey, this is Meenakshi Srivastava, also known as My Boho Voyage, and I welcome you to another amazing episode of Inspiring Explorers. And as the name suggests, Inspiring Explorers is all about inspiring you with the inspiring life journeys of some of the most successful personalities from around the world. And they also share with us some of their interesting travel experiences that are not limited to sightseeing. For this episode of Inspiring Explorers, we have an inspiring explorer who is a consultant, one of the best digital marketing experts in India, a social media wizard, and a very humble soul, Manish Pandey. Manish Pandey is research head at Josh Talks and also works at the TEDx Gateway. He is very advanced on a yogic path and has worked with some of the most successful personalities in the digital field. But how did a guy working in a call center become India's best digital marketing and social media expert? To know more of Manish Pandey's inspiring journey and beautiful travel experiences, tune into this episode. But before that, let me tell you that you can watch all the inspiring Explorer episodes on my YouTube channel, My Boho Voyage, MYBOHOVOYAGE, and come connect with me on Instagram at the rate My Boho Voyage to catch me and my guests go live on Instagram. Also, if you guys are on Clubhouse, come connect with me there as well and let's have some great conversations. All the links are mentioned in the description box below. If you're watching this or any other episode on YouTube, then please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon so that you stay updated whenever I post a new video. And if you're listening to this episode on Spotify, please follow. And if on Apple Podcasts, then please subscribe and please leave a review about this show, as it helps me bring you more awesome episodes. So, without any further delay, let me welcome the digital marketing expert and social media wizard, Manish Pandey. Welcome to Inspiring Explorers, Manish sir, and I'm super Thank happy, you. grateful, and honored to have you on Inspiring Explorers. I'm honored to be here. Thanks. You're just too humble to say that. Okay, so like I have multiple questions, and I think the entire world has multiple questions for you. So, but to start with, I would like to ask that you wanted to become a doctor, but rather you ended up becoming a digital marketing expert. So, how did that happen? So it's very simple. I wanted to become a doctor. I did study also hard for it. I did qualify medical examinations and all also. It's all in my Joe stocks also. I've spoken about it. Clear cut hai, we didn't have you know enough financial backing, or we even didn't have a lot of document backing. So we did not have anything at all on us. So I think that dream just kind of got subsided there. It just died its own death and it finished. But I don't regret it at all. I mean, कभी कभी मुझे लगता है कि it's great that I did not take that path, because I see my friends, my classmates who've become doctor, they're still studying, and it's horrible. So True yeah, that. I mean it's not horrible, but yeah, I mean I feel sorry for them because they're still studying, like so yeah. I think जो हुआ अच्छा ही हुआ. So it's Yeah, fine. true that. And digital marketing is also something that's booming right now, and like even doctors need it. So, and you also started your own company. So, what was that story? I did not start my company. That is not true. Okay. I tried my hand in running a call center for sure. It failed miserably. That time I was 22-year-old. So 10 साल पहले की बात है. And so I have been a consultant on digital marketing. I've worked in various organizations. However, when I started working in 2007, professionally working, like started with a call center. So digital marketing happened accidentally to me. I was hired for a role called pre-sales executive. That means my job was to hunt email IDs and phone numbers from the website and write emails to those individuals and organizations saying ki website banwa lo and all, because I was working for a digital marketing company. We used to make websites, do basic social media. This was back in 2010.
So, and then my boss came to me one day and he said, "Ki Manish, yaar, we are a digital marketing company. We do website, application development, we do SEO. We should also do social media for people." And I said, "Yeah, should." And he's like, "Will you take it up?" I said, "But I don't know anything about it." And he said, "Let's figure out when I don't know anything." So I said, "अच्छा boss भी बोल रहा है, उसको भी नहीं पता." That means it's okay. Let's try and figure something out. So how it exactly happened was very funny. My boss had a friend. He was president of this Rotary Club. Okay, he was a famous man. He had a Facebook account with 5,000 friends. And तब pages का system नहीं था. I think pages आया नहीं था. I guess. तो profile से ही सब कुछ चलता था. आई थिंक उसके अगले साल ही पेजेस आ गया था. तो आई एम नॉट श्योर, आई एम फॉरगेटिंग. सो वो प्रोफाइल ही सेड कि मनीष, ऑल वी हैव टू डू इज, यार ये सो एंड सो पर्सन का प्रोफाइल है, इज अ बिग मैन, एंड ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू सी दैट किसका किसका बर्थडे है, उसको हैप्पी बर्थडे विश भेजना है, एंड कमेंट यदि आता है उसको रिप्लाई करना है, कोई फोटो अपलोड करना है, ये करना है, वो करना है. ऐसे ठीक है, करते हैं सर. मजा भी आ रहा था यार. ठीक है. लोग रैंडम चैट भेजते थे, उस चैट को मैं रैंडमली रिप्लाई कर रहा हूँ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सम रोटरी क्लब. बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी टेकन डाउनलोड की, अच्छा ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो ये बताना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो ये बताना है, पर्सनल क्वेश्चंस को टच नहीं करना है. सो वी हैड एन एसओपी. So things started like that, and then from there to understanding the pages, and I started self studying and all that stuff, right? So वैसे वैसे फिर चीजें आगे बढ़ी, and then 2 साल के अंदर अंदर I was said to be one of the guys when it comes to digital and social media in Pune, because I was in Pune at that time. Then I moved to Bombay. Then I moved to Bangalore. And then, a lot of advancement happened to me actually when I moved to Bangalore, because there is where I got to work with amazing clients. Like I worked with IBM, I worked with Acer, I worked with startup guys, I worked with, Wrangler, and then Vans, and this big brand, Diageo for that matter. Lot many. Nature in Focus was a festival that the organization where I was working, uska an internal tha. So because I have an affinity to wildlife and all that stuff, so I got attracted to that and I worked for that. So हाँ, मतलब असली digital marketing हुआ when I in 2014, 15 and 16. These 3 years was real play that I did, and there is when, I mean, they started calling me, okay, one of the top brains and whatever, because strategies clicked and kuch articles aaye, media articles aaye. I started getting quoted for campaigns and all that stuff. So that's how it panned out. But I had not planned this. This happened to me not by design, not by luck, but I think on the way how it should happen. So self learning, meeting great people, already meeting successful people. I owe my digital marketing knowledge to few people. One of the guys, my boss, of course, his name is Ashish Dalia. He used to be my boss. So उन्होंने बहुत मुझे freedom दिया था. उसके बाद the guy that Foxy Moron, Pratik, Suvir, and तब हर्षिल भी होते थे, तो उनका काम देख के मैं बहुत inspire होता था. Then I got a chance to interact with them. फिर my good friend Angad Manchanda, who owns an agency called Chimson Inc. उन्होंने भी, उनके काम से भी मैं बहुत सीखा. Saurav Jain is a digital marketer. He's out, yeah. and he does a lot of amazing stuff. So मैंने उनके साथ उनके वर्कशॉप्स में काम भी किया है. So मतलब मैं चार्ट पेपर लेके खड़ा होता था and all that stuff. So I've learned from these guys, so I have immense gratitude for these guys. And then I figured things on my own also. Kiruba Shankar, for that matter, one of the guys known, I've learned from him. Tinu Cherian, a Twitter friend of ours. Bangalore mein, the guy Nivedit, influencer marketing mein, he's such a nice guy. निवेदित हो गया, फिर हरीश देम्पे नाम है उनका, उनसे सीखा हूँ. अमित पांचाल, a great friend of mine from Ahmedabad, I've learned from him. So yeah, so many names to take. I mean, हमारा फिर TEDx Gateway में कम्युनिटी होता था, फिर सोशल मीडिया वीक हम करते थे, उसमें कम्युनिटी होता था. So my friends like Shreyash Shetty था, and like too many friends, Neha for that matter, Amar Kanchwala, all these friends, the too many friends who I owe my whatever a little bit of whatever success or whatever you want to call. So these are the people behind me. I'm here whatever because of these guys who've helped me so much. So yeah, I mean, and I'm sorry, I might have missed a lot of names, but there are many others as well who's helped me to be whatever it is. So ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बन गया. A lot of hard work is there, but a lot of support of
good people helping, community coming together and all. So Ritu David, a friend of mine who runs a company called the Data Dark. She used to be, she was an interim CEO for Social Samosa. We worked together on few things. We're still friends. We're more than friends. We've like family and a lot of people. Yeah, a lot of people. Khushbu Pandya, Dr. Khushbu Pandya, not to forget her. Then Falguni ma'am, Maika ki professor hain. So lot of people I have to name, behind whatever success you want to call it. Yeah, definitely. And awesome names actually. Some diggaj in the industries, I must say. Like the हम सब रहे थे bosses. उसी टाइम, तो हम सब एक दूसरे को मदद कर बड़े हो रहे थे. Few people were legends already, so like Tinu, Saurabh Jain, हाँ. Avi Arya साहब, all of these guys were legends already, so उनके छत्र छाया में हम बड़े हो रहे थे. So yeah. Exactly. And I mean, such amazing people that you got to work with and learn from. So I think universe was working and conspiring to, get you there. Yeah, And something like that. Because all I knew is मुझे मेहनत करना है, and I think I हाँ. always got an opportunity to be at the right place with right kind of people in right room, pick up right kind of knowledge from them. So yeah, I think you can take this liberty and say that I was lucky enough. Yes, I will consider I was lucky. Yeah. Lucky, but also hardworking. And we have seen that like in a lot of places and interviews in your works that we see. So, हाँ मतलब I didn't have an option यार. Meenakshi, hmm, I didn't have an option, so I had no alternate but to work hard. हाँ. So I still do. Like I still wake up sometimes. अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यार कभी खत्म तो नहीं होगा ये सब. चलेगा ना. Like कभी कभी लगता है, मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि यार ये ठीक है, हाँ. मतलब चल रहा है, एक दिन कट गया, कल का दिन देखेंगे. So yeah, it's like that. Like literally, yes. रहेगा सर. Cool. लंबा रहेगा. I wish for Yeah. more success for you. And I think everybody चलो, else would. great. Yeah. जी जी. So मेरा ये क्वेश्चन था इसके बाद कि you also talked about TEDx Gateway. So Mm-hmm. TEDx Gateway में कैसे आप मतलब जॉब में आए? बड़ा And then इंटरेस्टिंग you जर्नी started है. सो working. माय हाँ. गुड फ्रेंड यशराज अकाशी, आई ओ हिम अ लॉट. आई जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं उसको क्रेडिट करता हूँ. ब्यूटीफुल पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. सो टेडेक्स पूना होता था एंड आकाशी वहां पे देखने आया था. वहां पे वाईएसए बोलते हैं हम उसको प्यार से. सो वो देखने आया था, और मेरे दोस्त हैं आशीष सूर्यवंशी, वो अभी यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो पूना के क्यूरेटर थे. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि मनीष भाई आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हो, थोड़ा हमारे यहाँ के ट्वीट वगैरह कर दोगे. तो मैंने बोला यार क्यों नहीं. और मैंने बोला टेडेक्स वेडेक्स क्या है, मुझे पता नहीं था. मैंने उससे पहले ना एक टेड टॉक भी नहीं देखा था. आई डिडंट नो, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. सो मेरे एक स्कूल के सीनियर है अभिषेक, वो मेरे साथ रहते थे. तो मैंने उनको बोला कि यार भैया ये टेडेक्स पता है क्या आपको. बोलता है क्या बात कर रहा है, मैं तो देखता हूँ टेड टॉक, तेरे को टेड टॉक नहीं पता. तो मैं बोला नहीं पता. तो मैंने टेड टॉक देखा, तो बोला अच्छा ये तो लोग आते हैं बोलते हैं यार मेरे को इनवाइट मिला यहाँ पे जाने के लिए. बोलते क्या बात कर रहा है, तेरे को इनवाइट मिला. बोला हाँ. तो मैं भी आऊँ क्या. बोला हाँ चलो. तो हम गए, फिर वहां पे मैंने थोड़ा बहुत जादू किया अपना, ट्रेंडिंग होने लगा. सो आकाशी सॉ मी एंड ही सेड यार ये मेरे को, आई वांट टू टॉक टू दिस गाय. सो फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ उसके बाद, एक साल के बाद ही. एंड देन समहाउ यशराज मैसेज मी कि हे आर यू इन बॉम्बे, लेट्स कैच अप. तो 2014 की बात थी. तो आई सेड हाँ लेट्स कैच अप. तो फिर मैं गया, तो पूना में जो था बड़ा छोटा इवेंट था, और यशराज करता मैसिव इवेंट, मतलब क्रेजी इवेंट. तो 2014 ही सेड ओके मनीष, सोशल मीडिया खाली है, कोई देखता नहीं है, तू करेगा क्या. आई सेड ठीक है करता हूँ. एंड देन वी स्टार्टेड. और फिर हमको एक ही काम आता है, चमकाओ. तो हमने चमका दिया. तो एंड देन आई बिकेम हेड ऑफ सोशल मीडिया फॉर टेडेक्स गेटवे. फिर 2014, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से हमने किया नहीं. बट यस, so I was heading social media for TEDx Gateway. मैं अभी भी I'm equally a part of it, of the community. So जब भी event होता है I go, I do my stuff, come back. एक महीने में dedicate करता हूँ. So that's how TEDx Gateway happened, and because of TEDx Gateway I met so many amazing people. So I've made families from there. I have my best friends Mulchand and Meghna from there. I met Hans and Avantika. Hans is like a family, Avantika is like a family. My wildlife buddies, I met them there. Captain Raghuraman I met there, who I worked with in Reliance. So yeah, TEDx Gateway I owe a lot to my career. So I don't leave an opportunity of thanking Yashraj and the entire concept of it, for helping not just me, many people have made their career out of that place. So yeah, I think again, right time, right place, right person, right opportunity. और जहां मौका मिला करो मेहनत. So मेहनत मतलब बहुत की है. So yeah. हाँ.
नहीं That's how अच्छा that. भी है, बढ़िया है, like because TEDx is something where all the people with those big ideas come and then you get to meet them and I have seen कि जितना ज्यादा इनके साथ रहो तो उतना ज्यादा हमें सीखने मिलता है. So that's Yeah, again correct. amazing. In fact, Shobit and Supriya, the co-founders of Joe Stocks, Josh जहाँ talks. पे अभी, you know, we met at TEDx Gateway. So they also had come. I think they Wow. had not started Joe Stocks then. They had come as an audience and they saw me and they wanted to meet me. So one of our common friend made us meet and all, and that's how we became friends and that's how things started. So from there, this also ventured, you know. So yeah, as I said, everything has a ripple effect, a connection. So yeah, that's how things happened there. That's amazing. We'll come to the Josh Talk parts again later, but Yeah, I sure. want to ask that you also shared about you being an 11-year-old kid and still working. So I would like to go Yeah. into that journey a little bit. Could you share that with us? Yeah, I think it's already out there on internet. If somebody watches हाँ. my Joe Stock, they will get an idea. However, I will मतलब shortcut में बताता हूँ. So basically, चक्कर ये था कि our father, when I was 2.5 years old, I went to Nepal. My Nana ji is from Nepal, so I was called to Nepal to study there, and rather mom took us because मेरी माँ took us because यहाँ पे ना कुछ future नहीं बन रहा था पापा के साइड ना. Hmm. And then उसके बाद पूरा गायब से हो गए. So I didn't see my father till I was what 13-14 year old. I didn't know how he looked, right? I had no idea. So ना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता था वहां पे बिकॉज नाना जी ने बुलाया था. नाना जी यूज्ड टू लव अस बट अदर फैमिली मेंबर्स ऑलवेज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट सेइंग दैट यू नो ये शादी करके वापस हमारे घर ही आ गई है एंड ऑल दैट. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एवरी डे, लाइक एवरी डे देयर वाज स्ट्रेस एंड एवरीथिंग यूज्ड टू बॉयल डाउन टू मनी कि तुम्हारे पे पैसे खर्च हो रहे हैं, तुम्हारे पे पैसे खर्च हो रहे हैं. So I thought to myself, yeah, you know, I need to solve this and what can I do? So I said as a kid what could I do is I did two things. मैं सब्जी बेचता था. And yeah, so what I used to do is हम हमारे नाना जी के यहाँ खेत था. तो मैं नाना जी से मैंने डील क्रैक किया. मैंने बोला यार नाना जी ये सब्जी ना मैं बेचूंगा. सो यूज लाइक तू कैसे बेचेगा? लाइक मैं बेचूंगा, ठीक है. सो मैं हमारे जो किसान भैया होते थे जो हमारे यहाँ काम करते थे, मैं उनसे बैलगाड़ी में सब्जी लोड करवाता था और मैं बैलगाड़ी के ऊपर बैठता था और पूरा बैलगाड़ी लौकी से भरा हुआ, टमाटर से भरा हुआ, एंड देन वी यूज्ड टू गो टू द मार्केट. और उस उम्र में यू नो आई वाज लाइक अ लिटिल स्मार्ट आई गेस मे बी. तो मैं पूरा मार्केट पहले घूमता था. अब बच्चा था तो मेरे को सब रेट वेट बता देते थे. हाँ तुम्हारा टमाटर कितने किलो का है, तुम्हारा ये, मैं सबका रेट पता करके आता था और मैं उससे ना आधा पैसे कम में बेच सकता था और होलसेल में बेच देता था. शानदार. और मतलब 5 बजे मंडी स्टार्ट होती थी, मैं 7 बजे बेच बाच के घर वापस आ जाता था. एंड देन मैं नाना जी से बोलता था आप मैं जितना भी बेचूंगा मेरे को 10% चाहिए. एंड देन आई 10% and give it to my mother and say कि you know this money is my contribution to whatever kharcha that you are doing for us. This is one part of it. Another part of it was so हम जहाँ रहते थे उसके घर के सामने ना एक दीदी रहती थी, आंटी, एक्चुअली मम्मी की क्लासमेट ही थी वो, आई गेस क्लासमेट थी या एक क्लास जूनियर थी. तो वो ना चाय बेचती थी, उनका चाय का अपना स्टॉल था. वो भी मतलब दे वर नॉट टू रिच, तो वो चाय वाय बेचती थी, नाश्ता वास्ता, होटल टाइप था उनका, जैसे नहीं होता एक चाय नाश्ते का होटल टाइप. हाँ. तो वो था. तो उनका बेटा था वो पढ़ता लिखता नहीं था, तो वो बहुत परेशान होती थी. और मैं ना क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी ऐसे घूमता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था. तो एक दिन मेरे को बोला कि यार मेरे को बोले मनीष मेरे बेटे को पढ़ाओगे क्या? मैंने बोला मैं पढ़ा दूंगा, वो पढ़ेगा मेरे से. तो बोला हाँ हाँ तुमसे पढ़ेगा, तुमको बहुत एडमायर करता है. मैंने बोला ओके. तो मैं 5th स्टैंडर्ड में था, 5th या 4th में था, आई डोंट रिमेम्बर, 4th या 5th में था. मैंने बोला ठीक है वो मेरे से 2 साल जूनियर, तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ. एक सेकंड फर्स्ट सेकंड का तो पढ़ा ही सकते हो यार. तो मैं उसको पढ़ाने लगा. और फिर वो क्या हुआ, वो मेरे को 30 रुपए मिलता था उस एक को पढ़ाने का. फिर वो कैसा हो गया कि मेरा वर्ड ऑफ माउथ हो गया बहुत कि यार ये पढ़ाता है, और वो पहले फेल होता था और ये तो अब क्लास में इसका फर्स्ट डिवीजन आ गया. तो मेरे पास ना 10-12 बच्चे हो गए उसी एज ग्रुप के, 30-30 रुपए, 40-40 रुपए. एंड देन आई यूज्ड टू मेक वही कभी मतलब पहले 30 रुपए फिर 60 रुपए, फिर वो कम से कम 300-400 रुपए टाइप हो गया. और देन आई यूज्ड टू गिव इट टू माय मदर. So that's how that story unfolds. So yeah, I did teach. तो फिर मैं 4th, 5th, 6th मैं जब से जैसे क्लास बड़ा होता गया तो मैं अपने जूनियर्स को पढ़ाते गया. And that it became a constant source of income. बस एक ही बार्गेन हो गया उसमें कि I did not get to live my childhood. So you know like the time when I was supposed to go and play cricket or play football or do whatever, I used to be doing all this. So just एक ही बेनिफिट था कि मेरे मामा जो एक थे, मामा वो मार्शल आर्ट पे थे, तो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock
से 7 o'clock मेरा इंटेंस मतलब एक्सरसाइज होता था. आई वाज लर्निंग मार्शल आर्ट, कराटे एंड ऑल दैट स्टफ. सो वो एक फिजिकल एक्टिविटी हो जाता था. अदरवाइज शाम को खेलने वेलने का नॉर्मल बच्चे जो एंजॉय करते थे, आई fortunately unfortunately did not get that chance. So yeah, but that's how this happened. It was fun, but I loved it. I think it taught me a lot of construct. It taught me sincerity. It taught me value of money and many more stuff. So I think I'm lucky कि this happened to me, because उस उम्र में मुझे ये सब सीखने को मिला जो लोग जिंदगी भर शायद नहीं सीख पाते. सही बात है. एंड इट्स लाइक लाइफ टीचेस यू हाउ टू बी वाइज. Yeah, लाइफ. I think yeah. So you should be very humble of what you get and like respect it and move. Yeah, true. And I mean, what all you went through, you did not take it negatively. You took it positively, and you started learning through all these teachings that life was putting on you to get you to the place Yeah, that you are today. I think, and I credit my Nanaji for it, is because I was taught good things bachpan se. I had started reading Bhagavad Gita when I was like what, 6 7 year old. मतलब जब से पढ़ना इंसान तो I used to have my own versions of understanding of from it, and you used to implement it and all. So I think spirituality saved me. Otherwise मैंने बहुत बारी मरने की भी कोशिश की है. I tried committing suicide. I have, but I think spirituality saved me, and the awareness saved me. And yeah, matlab, yeah, it was traumatic. Childhood was traumatic, but I guess overall I'm happy today, so it doesn't matter now. I think spirituality comes from a lot of pain, is what I believe. हो सबका अपना अपना वर्जन होता है यार. I mean जैसे भी आ जाए. हाँ. I think it's मतलब important to have to know and understand who you are and why you are and what is happening and why is it happening. वो कंस्ट्रक्ट वो आंसर्स यदि मिलने लगे तो इंसान सेन होता है. मुझे अभी भी तकलीफ होती है कभी कभी ना. समटाइम्स आई गो इन and I question myself, but again I settle back, and I meditation and all helps sometimes. So yeah. So also I would like to ask that your Nanaji's taught you spirituality. So like कुछ कहानियां उसमें से कि नाना जी ने कैसे शुरुआत करवाई आपसे मेडिटेशन की, एंड हाउ कैन पीपल लाइक आजकल भी मेडिटेशन इज समथिंग people hype a lot and they don't know what to do exactly. So that first step towards meditation, how can somebody वो take that first step? I think ना ये हुआ कैसे पता है. So my Nana ji, he has a routine. So he used to wake up 4 o'clock in the morning. अच्छा, I used to sleep with him. So मैं नाना जी के साथ सोता था. I was a kid, so I used to sleep with him in his bed. Yeah. तो वो उठते थे मैं भी उठ जाता था. वो नहा लेते थे मैं भी नहा लेता था. वो ध्यान पे बैठ जाते थे मैं भी बैठ जाता था उनके साथ. वो भगवत गीता पढ़ते थे मैं बैठ के सुनते रहता था. वो दुर्गा का पाठ करते थे, शिवा का पाठ करते थे, मैं भी उनके साथ सुनता था, पढ़ता था. ठीक है. बस दिस इज हाउ इट हैपेंड. ही नेवर टोल्ड मी कि आओ बैठो करो, बट ही न्यू दैट आई एम द वन हु वुड डू इट. देन ही टॉट मी फ्यू थिंग्स आल्सो. सो दिस इज हाउ इट पैन्ड आउट. So he didn't ask me कि आओ बैठो करो, and he didn't force me on. I think I just mimicked him, and I think it was supposed to happen. So, and maybe if you understand and believe, maybe the universe prepared me because I had to go through hardships. So I had to make that shield around me to kind of go through all this. So I think that's how it happened. True. And like first step towards doing meditation. I think सबका अपना अपना स्टाइल होना चाहिए, but there are few steps that are like skeleton of it. So those things are ensure that your body is clean. So आप नहा लो या हाथ पांव अच्छे से धो लो, fresh लगो. Sit in a very good place, comfortable place. थोड़ा सा फ्रेगनेंटेड रहे तो और अच्छा है. दिया जला लो, it just lightens the environment and mood. And then बैठ जाओ यार, simple बैठ जाओ. Try and think about stuff. Try and play around with your thoughts. Try and stop your thoughts. Let it be. Let few thoughts come. Park it aside. Try and focus on something. I think यही होता है. इससे और ज्यादा कुछ नहीं होता है. मतलब अब लोगों ने इसमें से इंडस्ट्री बना दिया है आजकल. I've seen मेडिसिन, मेडिटेशन, पता नहीं क्या क्या मेडिटेशन, मेरे को नहीं समझ में आता. So this is my simple philosophy that works for me. This is how rishis have done in the past. So yeah, this is what it is. Concentrate. जो भी आपको अच्छा लगे, शिवा, दुर्गा, गणेश, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जो अच्छा लगे उनको ध्यान में रखो. वाहे गुरु, जिसको उनको ध्यान में रखो, करो. And then it's simple. It's very very simple.
Yeah, definitely, and that's a good point. And thank you for sharing that. क्योंकि जैसे आपने कहा, मैं क्या सोचता, I'll tell you what I think about when in my meditation. Okay. हाँ I think ये मैंने कहीं बोला नहीं है. I think रणबीर के पॉडकास्ट में भी नहीं बोला था ये. हाँ I think about trees, I think about flowers, I think about river, fire. I think about all natural elements. That's what I think about. I think about light. I think about different colors of light. How those colors of light is. यदि फॉर एग्जाम्पल मेरे पे व्हाइट लाइट है तो उससे क्या होगा, रेड लाइट है तो उससे क्या होगा, ग्रीन लाइट है तो उससे क्या होगा, एंड ऑल. और मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऐसे बहुत ज्यादा खतरनाक है नहीं, मैं 5-8 मिनट में हो जाता है मेरा, उतने में पूरा एनर्जाइज हो जाता हूँ, हो जाता है. तो मैं क्यों बैठूं 2 घंटे? सिंपल है ना. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फुल फोकस्ड हूँ, दैट इज मेडिटेशन, राइट. मैं फोन चेक नहीं कर रहा, मैं हाँ, ये उधर नहीं. आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम लिसनिंग टू योर क्वेश्चन. सो आई true. थिंक दिस इज meditative right now, right? So that's how it is, that's how it should be actually, you know. इसको larger than life, bigger than anything, एक construct और एक environment और ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, right? वही है कि नहीं करने वालों को 1000 बहाना चाहिए और करने वालों को कोई हो जाता है, हो जाता है. तो you don't have to like really go through it. Oh, structure बताओ, how do I go about it? Simple यार, simplicity wins. Simple रखो, that's how it wins. Yeah, true. Like minimal रहो, उसी में meditation हो जाएगा. You don't have to. Totally, totally, yeah. मतलब ये कितना भी क्लीशे लगे, यही सच्चाई है. हाँ. हाँ. नहीं, सही लग रहा है. आई थिंक पीपल कैन प्रैक्टिस दिस नाउ बेटर. मंदिरों में भी जाके कहते हैं ना कि थोड़ी देर बैठे हैं वहां पे, तो यू जस्ट हैव टू, यू गेट दैट एनवायरनमेंट देयर अ ये है कि लिटिल एक बिट. एक इन्वायरमेंट बना होता है ना. लाइक सो भैया मैं छोटा था तो मेरी नानी ना बहुत पूजा वूजा करती थी, और आई यूज्ड टू गो टू टेंपल्स, राइट. बट व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द टेंपल, आई यूज्ड टू क्वेश्चन, यार लोग आते क्यों? एंड देन मैं वहां पे देखता था, सब आ रहे, मेरा ये करा दो, मेरा वो करा दो, मेरा ऐसा करा दो. राइट. एक्चुअली मैं ऐसे सोचता था, राइट. एंड नाना जी को आके पूछता था, हम हंसते थे. मैंने बोला ये क्या लोग जाके बोलते हैं, ये करा दो वो करा दो. But then Nanaji made me understand कि ऐसा नहीं है, you know, there is a concept and this and that and energy form, and then I understood, you know, I was a kid. As a 4 or 5 year old, I think I was allowed to ask all that, है ना. वही होता है. But now when I see temples, so थोड़ा सा because of age and experience, I think I can sense some energy. So I'm very choosy about entering temples. I don't enter अच्छा. every temple. अच्छा. And I when I enter temple, my goal is find a corner and sit and absorb the entire energy. बिकॉज वहां पे इतना ज्यादा चांटिंग हो रहा है, इतना ज्यादा काम हो रहा है, इतना ज्यादा मंत्र चांटिंग हो रहा है, वहां पे आरती हो रही है, सब हो रहा है, एंड ऑल ऑफ दीज एनहांसेस द एनर्जी. सो एम आई एबल टू टैप इनटू दैट एनर्जी एंड टेक द गुडनेस आउट ऑफ इट, राइट. आई थिंक टेम्पल्स कैन गिव यू ओनली दैट. भगवान कैन नॉट गिव यू ऑल दैट. भगवान इज ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यार. सांस ले रहे हो, यू आर एबल टू ब्रीथ, यू आर एबल टू ब्रीथ, वॉक एंड ऑल. अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? भगवान से इससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, बस काफी है. And as you talked about the energies, that's true. If we'll have time, I'll share that later, not right now. Sure. Yeah, Sure. so I'll talk about Josh Talks now. That how did you guys come up with the idea of Josh Talk? Okay, so basically, entire credit goes to Shobit and Supriya who thought of the idea. It's their idea, right? It's a story. It's out there in PR and all. They both met in a common friends party, and they thought कि कुछ ऐसा करेंगे and all that. So that's how it happened. We came in picture. So certain senior members came in picture. Munish, मैं, Vedant, Nabil bhai hai, So all these people, Shilpa, for that matter. So all these people came in picture. कहीं ना कहीं like-minded people मिले, and then things started. So we all started doing our parts. So मेरा एक्सपर्टीज सोशल मीडिया और ये इवेंट ये सब में होता था, तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट करता था. सो आई थिंक 2015 में हम लोग मिले, एंड 2015 में ही आई थिंक जोश टॉक स्टार्ट हुआ था. सो 2015, 16, 17 तो मैं अपने तरफ से मैं क्योंकि कहीं और काम करता था, जो भी हो सकता था कंट्रीब्यूट करता था प्रो बोनो, और टाइम निकाल के एक आधा घंटा रोज डेडिकेट करो, हफ्ते में कभी 2 घंटा डेडिकेट करो, एंड ऑल दैट. And then when the time was right, everything was right. I was in Reliance in Bombay, but both Supriya and Shobit told me कि you should come down full time now. Let's build it big and all. I said cool. 2018 में आ गया मैं, and then we started doing things together, and things happened. Lot of people do a lot of hard work to see whatever you see. So the credit cannot go to 1 or 2 or 3, 4 people. A lot of people do a lot of hard work. So it's a teamwork, compiled effort that is put out there.
एंड यू नो जोश टॉक सबका है. वी कैन नॉट, वी नेवर. कल किसी ने ट्वीट भी किया था, मैंने उसको बोला कि यार, उसने पूछा जोश टॉक्स आपका प्लेटफॉर्म है क्या, मैंने बोला मेरा नहीं आपका है. बिकॉज यार इट्स बाय पीपल, यू नो, फॉर पीपल. सो ये सबका है. तो यार कुछ लोग बस इसको चला रहे हैं, दैट्स द डिफरेंस बस. So that's how Joe Stocks happened, and I think it's going strong. It's doing good things, so it's happy. It's good. Yeah, definitely. And it's for inspiring people. So that's again like there are so many inspiring stories out there, and people can learn a lot I from think, Josh see, Talks. the goal was simple: to give a relatable role model to unlock human potential, Yeah. to challenge people, you know, challenge yourself. और वही कहानियां हमने ढूंढी, वही कहानियां हमने डाली, और लोग देखते हैं, उनको पसंद आता है, उनको इंस्पिरेशन मिलता है. आई थिंक कुछ लोगों का तो जिंदगी बन ही गया होगा जो स्टॉक्स की वजह से. आई थिंक दैट्स अ रिवॉर्ड, यू नो. वी गेट Exactly. लेटर्स, we get comments, we get letters with saying that okay, this changed my life. People took call. कुछ लोग IAS वाईएएस भी बन गए. तो बढ़िया लगता है यार. जो स्टॉक देखा और मन बनाया और 3 साल में IAS बन गया. वाह, चलो ठीक है, अच्छी बात है. सही बात है वो मोटिवेशन एंड देन लिसनिंग टू दिस स्टोरी. आई मीन पीपल लर्न अ लॉट एंड जोश टॉक्स हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल. एंड अभी मैंने देखा कि बुक भी लॉन्च हो गई आप लोगों की. यस, दैट्स जोश एक्साइटिंग. टॉक्स. तो बेसिकली हमने क्या किया है कि हमारे ऑफिस में मितुल है, हमारी कम्युनिकेशंस हेड, और सुप्रिया और शिल्पा, इन लोगों ने मिलके, ये तीनों चारों ऐसे लड़कियों ने मिलके जो है कि बहुत अमेजिंग जो है स्टोरीज, जो है कि 30 ऐसी स्टोरीज आउट ऑफ thousands of Josh talks that we have, they have compiled it and the book is called is All You Need Is Josh, कि आपको सिर्फ जोश चाहिए, बाकी सब आपके पास है, राइट. और वो बड़ी अच्छी स्टोरी है. तो प्री बुक के लिए अवेलेबल है. अभी तो लोग प्री बुक वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद वो शायद मई में आ जाएगी. इट विल बी आउट देयर. सो आई वुड हाईली रिकमेंड पीपल टू पिक इट अप एंड रीड. बहुत इनसेन स्टोरीज है इस किताब में, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत अच्छा निकलने वाला है. सो वी आर वेरी हैप्पी डेफिनेटली. अबाउट इट. I'll So yeah, provide the links in the description box. So if sure, anybody sure, wants please go to, ahead. Yeah, read yeah, that book, so that would be great. definitely do. Nice, nice, yeah. Yes, that would be. And Supriya, and I know Supriya is also working really hard on Josh Talks. And I saw the Yeah, book yeah. and I was like, I mean, amazing, man. I'll tell you, she's very inspiring. I mean, Hmm. actually, there are, like, all of them. Supriya is insanely inspiring. मतलब मैं ना ऐसे लड़की से मिला नहीं हूँ, इतना पावरफुल है. और मतलब एक टाइम के बाद ये जेंडर वेंडर सब खत्म हो जाता है. शी इज एन अमेजिंग CEO. आई एम वेरी प्राउड टू बी वर्किंग विद हर. आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विद हर. शी इज यंगर टू मी इन एज, बट डायनेमिक है लड़की. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर. I can tell. काम दिखता या है सामने. या या Yeah. So पावर that. हाउस है, फुल पावर हाउस है. हाँ जी. So आपने ना, I was reading about your story and I also heard your story on Ranbir Alabadia show. So first we'll come to how did you meet Ranbir Alabadia, Prajakta Kohli, and like Bhuvan Bam and all of these people. How did इट्स you अनकैनी. connect with सो them? 2000, आई थिंक 2017, हाँ 2017 ही था. सो टेडेक्स बैंड्रा हो रहा था, और यशराज ने ही मुझे कहा था कि यार टेडेक्स बैंड्रा हो रहा है, मनीष तू चले जाएगा क्या. तो मैंने बोला यार मैं नहीं जाऊंगा, क्या मतलब, आई विल नॉट गो यार, क्या तू जाना. तो इज लाइक नहीं नहीं, मुझे लंदन जाना है, तू तू चले जा. सो माय देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, दीप कनाकिया, वो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया में है, डायरेक्टर है. तो वो उसने बोला मैं भी जा रहा हूँ. मैं बोला चल ठीक है. फिर क्या हुआ कि कैप्टन रघुरमन हैपेंड टू बी अ स्पीकर देयर, एंड देन आई वाज वर्किंग विद कैप्टन रघुरमन. सो आई सेड चलो, देयर इज अ रीजन टू गो. I went there and Ranveer came as a speaker there. He already was a YouTuber with 100K subscribers that time. So मैं और दीप हम साथ में बैठे थे एंड रणवीर केम एंड गिव अ टॉक. आई रिमेंबर ही गिव अ टॉक दैट व्हाई वुमेन शुड वर्क आउट एंड ऑल दैट स्टफ. बहुत बढ़िया टॉक दिया उसने. मैंने दीप को बोला यार, मैंने बोला ये लड़का है ना, आई थिंक दिस गाय इज देयर समथिंग अबाउट हिम. और फिर देन इतना ही हुआ एंड देन वी स्टार्टेड हैविंग चाय वाय बाहर आफ्टर द ब्रेक एंड ऑल. एंड देन रणवीर केम रनिंग टू मी समहाउ एंड ही सेड ब्रो कैन आई टॉक टू यू. मैंने बोला, और मैं देख रहा था कि लोग फोटो खिंचवा रहे थे रणवीर के साथ. तो मैंने बोला हाँ ओके. फिर हमने कुछ बातें की एंड देन इट ईज्ड ऑफ एंड देन नो नंबर एक्सचेंज, नो नथिंग, ईज्ड ऑफ. फिर कट टू क्या हुआ, मैं टेडेक्स गेटवे के ऑफिस गया था, और टेडेक्स गेटवे के ऑफिस में आई वाज कॉल्ड. मुझे यशराज ने फोन किया और बोला कि यार मनीष ऑफिस आ जा प्लीज, देयर आर सम स्पीकर्स हु कम एंड वी डिस्कसिंग द स्टोरीज, वी नीड योर फीडबैक. आई सेड कूल, आई विल कम. मैं चला गया. रेनी सीजन था बॉम्बे में, कमला मिल्स में, एंड देखा तो रणवीर वहां बैठा हुआ है, उसकी स्टोरी डिस्कस हो रही है. बिकॉज आई थिंक दीप वहां से उसका
करके लाया होगा और यशराज को बोला होगा कि इसका देखते हैं। तो फिर वहां पे रणवीर की स्टोरी डिस्कस हो रही थी ना, और रणवीर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा था बिकॉज ही वाज नॉट लाइकिंग द वे इट वाज गोइंग। ही वाज वेरी ग्रिलिंग। टेनिस गेट पे थोड़ा ग्रिल करता है स्पीकर्स को, रीजन क्वालिटी देखो, राइट? सो इट्स दैट्स हाउ इट द क्वालिटी कम्स अप। सो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट था, बाहर निकला तो देन ही इज लाइक ब्रो वी मेट एट गेट यू नो एट बैंड्रा, राइट? आई सेड हाँ वी मेट, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन वी एक्सचेंज नंबर्स। Then I don't know what happened. Ranveer को थोड़ा सा feel आया कि यार this guy is a little different, and then he said, "Can I call you and talk to you?" And then once we met in Worli, and then that meeting, and that's today. And then he opened up about a lot of stuff, and all that whatever happened is there out there in his podcast. So go and watch. I would not like to kind of मैं अपने मुंह से क्या बोलूं. So that's how I met, and because of Ranveer only I met everybody. I met Bhuvan because of Ranveer. I met Prajakta because of Ranveer. So all of these guys I met because of Ranveer. And वो होता क्या है कि when we meet we talk, एंड मैं कुछ कुछ बोल देता हूँ और वो कुछ कुछ फिर वो शायद इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर वो बोलते हैं यार ठीक है. तो दे वेरी काइंड एनफ टू गिव मी दिस मच रिस्पेक्ट एंड लव. एंड या दैट्स हाउ इट इज. सो ऐसा कोई ट्रांजैक्शनल कुछ नहीं है, जस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल. सो ठीक है, दैट्स हाउ इट इज. Yeah, but like how we see is you are the person who changed his lives. अगर आई 100K थिंक दैट पे इज वेरी ऐसा बना ओवररेटेड टू देते. से. नहीं, आई थिंक इट इज वेरी ओवररेटेड टू से दैट. ही इज काइंड एनफ कि वो पॉडकास्ट में उसने ऐसा बोला है, बट आई थिंक इट्स वेरी ओवररेटेड. इज जेन्युइनली अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. वो आज भी बहुत मेहनत करता है. मतलब yesterday also we were talking 2 o'clock in the night. He called me and we were discussing some strategy and idea. So वो खुद में ही बहुत powerful है. All what I have done is like I think I've been there for like a friend and told him like help him take his decisions. That's all I've done. मैंने कुछ contribute नहीं किया दोस्त. I cannot take that credit. I don't want to take that credit. But that's So I awesome to see you guys just together. spoken to this guy and I have helped them take their decisions. That's all. Yeah, and that's amazing. And that's true. Ranveer does work a lot. Yeah, I like mean, all of these he's guys, not just Ranveer. हाँ. आज कोई भी कंटेंट क्रिएटर आप जो देख रहे हो, जो एक लेवल पे है, जिसको आप काइंड ऑफ मानते हो एंड ऑल, दे ऑल पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. इट इज नॉट इजी. अगले दिन मैं टैग के प्लेटफॉर्म पे आई वाज डूइंग अ वेबिनार एंड आई टोल्ड देयर कि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इजी. इट्स अ टफ टास्क. इट्स अ फुल टाइम जॉब. इट कैन नॉट बी अ पार्ट टाइम जॉब. यदि कुछ बनना है, डेफिनेटली आई वुड रेफर. एक्चुअली अंकुर वारिको सर ने एक वीडियो डाला है कल कि हाउ ही मेक्स कंटेंट एंड ऑल. एवरीबॉडी शुड वॉच दैट वीडियो. I एवरी saw that on your story. कंटेंट डालते हो तो देयर आर इंस्पायरिंग, अमेजिंग इंस्पायरिंग पीपल यार. That's true. कंटेंट क्रिएशन का मुझे इससे भी याद आया कि आई लाइक ट्रैवल ब्लॉगिंग ना, और मैं हम्म. पहले जब शुरू किया मैंने इसमें, तो अब जब मैं गई तो काम से गई मसूरी. सो नाउ इट वाज not a chilled out vacation, it was a work vacation. I was working in करेक्ट. as well as, and I cannot even imagine that hard work that all the other content creators that are on that level put up. यस. That's यस. amazing. यस. तो सर आप मैं ये भी पूछना चाहती थी कि आप कोलकाता, सिलवासा, नेपाल एंड बलिया में रहे हो, योर चाइल्डहुड एंड योर अर्ली बलिया में टाइम. ना मैं ज्यादा रहा नहीं. अच्छा अच्छा. बलिया वो टच एंड गो ही हुआ है. बट आफ्टर माय फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर, then I actually visited my village after so long. And then I spent like 45 days there, maybe. I no, not 45 days, 25 days. And then I saw properly, और तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये गांव है and all that stuff. So yeah, but I think इतने जो जगह रहा हूँ मैं, इससे ना बहुत फायदा हुआ है. I picked up languages, I picked up stuff. So I think yeah, I'm very grateful for whatever has happened in my life. Very grateful. I don't see anything bad. हाँ, लेकिन कभी कुछ कुछ चीजें परेशान कर देती है, बट इट्स ओके. दैट्स हाउ लाइफ इज. सो आई वांटेड टू या. आस्क कि जब आप सिलवासा में और फिर नेपाल में, कोलकाता में, और जब आप यहाँ पे थे बलिया में, जो अभी भी आपने विजिट किया, so there must have been a lot of changes in cultures in just these four areas. So any good things that you would like to share, and any good stories that you would like to share from these places? I'll just take you. I'll take you to the sequence of how I stayed where. Okay, so for example, Okay. I was in Calcutta. There's a place called Kon Nagar in Calcutta. I was born there. उसके बाद मैं 2.5 साल का था, मैं नेपाल चला गया. There's a place called इनरवा in नेपाल, वहां पे चला गया. उसके बाद 6 स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद आई केम टू माई विलेज फॉर 8 months. माई बलिया में 8 महीने के लिए. उसके बाद मैं
मेरे पापा सिलवासा में काम करते थे, तो मैं वहां से सिलवासा आ गया। सिलवासा में मैं आई थिंक 8th 9th 10th तक था। 11th 12th में मैं पालघर आ गया, विच इज नियर बॉम्बे, थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर 11th 12th वहाँ किया। फिर 12th के बाद मैं पूना आ गया काम करने। 2007 से 2014 तक मैं पूना था। 2015 में मैं बॉम्बे चला गया। 2016 में मैं बैंगलोर चला गया, 2016-17। फिर 17 में बीच में मैं बॉम्बे आ गया वापस। 17 से 18 के एंड तक बॉम्बे पे था। फिर 18 में मैं यहाँ आ गया, गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव। फिर 18 से अभी तक मैं यहाँ हूँ। अभी तो मैं टू एंड फ्रो करता हूँ बॉम्बे। सो दिस इज हाउ इट पैंड आउट, right? Now, the great thing about all the places is that yes, I got to connect with amazing culture, and I picked up a lot of cultural aspect. And every place has its own charm. Every place is contributed to in me to make me who I am. So I'm very grateful to these places and the construct of it and the culture of it, right? If you ask me कि सबसे favorite कौन सा है and all that, I'll not be able to answer. मैं सच में answer नहीं कर सकता. So yeah, this is how it panned out. नहीं, मैं फेवरेट नहीं पूछूंगी। मुझे आई फील लाइक इन प्लेसेस आर समथिंग दैट मेक अस, एंड इट्स नॉट लाइक आई यूज्ड टू चेंज अ लॉट ऑफ सिटीज बिकॉज हाँ, माय फादर मैं खुद बहुत घुमक्कड़ हूँ, मैं बहुत घूमता हूँ। मैं देखा। You know, like so for example, मैं दिल्ली आया तो I discovered this place called ऋषिकेश। मैंने बोला यार ये बढ़िया जगह है। तो every second weekend I used to be in ऋषिकेश। मतलब मैं फ्राइडे ISBT जाके बस पकड़ के, अपनी सरकारी बस, परिवहन वाली बस पकड़ के चुपचाप पहुंच जाता था ऋषिकेश। वहां पे ऋषिकेश में दोस्त बना लिए थे। तो कभी मैं गाँव में जाके रहता था, कभी किसी के घर में रहता था, कभी हॉस्टल्स में रहता था, कभी होटल में रहता था। लोग जान पहचान के हो गए। तो फिर उस तरीके से मैं 2 बार तो मैं गंगा किनारे सो गया हूँ रात को। तो मतलब मैं बहुत घुमक्कड़ हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। वाइल्ड लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो बड़ा नेशनल पार्क वगैरह जाते रहता हूँ। जैसे भी जब भी मौका मिलता है चले जाता हूँ। फिर अभी रिसेंटली मैं गुजरात घूम के आया, कच्छ वगैरह। मेरे दोस्त हैं अभिषेक और मानसी, उनके साथ। और हाँ, मतलब बस घूमते रहता हूँ, मजा आता है। आई थिंक ट्रैवलिंग से ना इंसान ग्राउंड होता है। उनको लगता है कि हम कितने हवा में हैं और दुनिया कैसी है और हाँ, लोग कैसे काम करते हैं। और हम तो बहुत प्रिविलेज्ड लगता है। फिर हमको ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत बहुत सुखी हैं हम भाई, है ना। और तो यहाँ बहुत कुछ सिखाता है ट्रैवलिंग। सो आई थिंक सबको ट्रैवल करना चाहिए। एवरीबडी शुड ट्रैवल। डेफिनेटली। एंड ट्रैवलिंग में ना, मैं आई डोंट प्रमोट कि ना आप जाके साइट सीइंग वाली जगह देखें। आप रादर यू टॉक टू द लोकल्स, एंड लाइक आपने कहा कि ऋषिकेश में आप जाके रहे हो घरों में, so that would have taught you more rather than living in the hotels. हाँ, अब मैं लद्दाख जब गया था ना, आप सो आई टुक एन सैबैटिकल। अनफॉर्चुनेटली माय फादर पास्ड अवे इन दैट थिंग ओनली। हाँ, अदरवाइज इट वाज डे ट्रिप दैट आई वाज मेकिंग। बट मैं लद्दाख जब गया, मैं 45-50 दिन आई गेस लद्दाख में था। 50 दिन में मैंने आई थिंक 20-22 विलेजेस देखे लद्दाख के। वाह। और मैं बहुत चला हूँ, आई वॉकड अ लॉट। एंड देन हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं आशिमा जी, बहुत सीनियर है। उनके साथ वो जर्नलिस्ट हैं, तो तब वो 370 आर्टिकल वाला सब चल रहा था। तो शी वॉज डूइंग स्टोरीज विद पीपल, सो आई 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 टैग्ड अलोंग विद हर। तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स तरीके से मैं रहा हूँ। मुझे अब लोकल्स जानते हैं लद्दाख में, लाइक वहाँ के लोग जानते हैं, मेरे दोस्त बन गए हैं। नवांग एंड ऑल दोस पीपल, आर्यन वैली में एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। मैं हॉस्टल में रहा था वहाँ पे, स्कूल के हॉस्टल में, अभी 1.5 साल पहले बच्चों के साथ हॉस्टल में था। और उनको पढ़ रहा था, उनके साथ खाना बना रहा था। ऑल दैट्स हाउ आई स्टेड इन लद्दाख। दैट्स रियली ऑसम। लाइक जब या आप कह रहे हो ना कि उनके साथ रहे हो आप, दैट वुड हैव टॉट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लद्दाख या में या कोई 15 दिन लोकल्स के साथ देखो, फायदा हो जाता है। हाँ हाँ, मैं तो एकदम लोकल टाइप बन ही गया था। ऐसा लग रहा था एक टाइम के बाद कि मुझे यहाँ पे कोई कमरा वमरा मिल जाए, ये रह लूंगा। बट देन यार, आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु लिव इन दैट टेरेन। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। मैं वहां पे बच्चे 10-10 12-12 किलोमीटर अभी भी पैदल चल के आते हैं यार पढ़ाई करने स्कूल में। इट्स क्रेजी। गारकोन नाम का एक गांव है, वो गारकोन से सिल्मो नाम के गांव में लोग पैदल चल के आ रहे हैं 12-15 किलोमीटर। मैंने बोला यार, और वो भी हिली टेरेन में, राइट। और आने के बाद वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद वापस घर जा रहे हैं, और घर जाने के बाद घर का काम कर रहे हैं। कोई बकरी से दूध निकाल रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पानी भर के ला रहा है। मैंने बोला मैसिव रिस्पेक्ट है यार इन बच्चों को, मतलब कैसे कर रहे हैं लोग, है सही ना। बात है। और हम यहाँ It's स्कूल से insane. आके Or थक के सो not just जाते हैं। bache, the teachers also, the teachers who are teaching in the school and all, they're all going through a lot of hardships.
life is very easy where we are. Correct. तो हम लोगों ने ना तब घूमा है, जैसे बद्रीनाथ है ना, तो लाइक अभी मैं केम्प्टी फॉल गई तो मैं रोने लगी थी केम्प्टी फॉल जाके। केम्प्टी फॉल यूज्ड टू बी सो ब्यूटीफुल, और अभी तो अब बेकार हो नीचे गए। बहुत बेकार हो गया। मैं नीचे तक गई। पहले केम्प्टी फॉल में ना ये लोग कोका कोला की बोतल ठंडी करते थे। बद्रीनाथ में मैं 2 साल की थी, तो मुझे याद है कि वो जो हॉट स्प्रिंग्स होती थी बद्रीनाथ की, तो उसमें वो लोग चावल की पोटलियां बनाते चावल, थे। हाँ मैंने भी नेपाल में, मैंने भी ये सब किया है, खुद किया है नेपाल वाह। में ऐसे बहुत। तो हम चावल वावल बनाते थे, पिकनिक जाते थे हम, खुद ही बच्चे चले जाते थे टाइप्स। अरे वाह। So any more travel experiences, one or two more that you would like to share with our listeners and viewers? Would be great. वैसे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस बहुत हैं। वन ऑफ माय मोस्ट इन लाइक, अभी भी मेरे को ऐसे आंख बंद करूँ तो याद आ जाता है, वाज व्हेन आई वाज इन बॉम्बे, आई वाज वर्किंग फॉर अ जेंटलमैन कॉल्ड संतोष नायर। ही हैपेंस टू बी अ मोटिवेशनल कोच एंड ऑल दैट स्टफ। सो उनकी ना इवेंट्स होती थी बहुत साउथ में, केरला वगैरह में। तो मैं ट्रेन से जाता था। ये हमारा जो ये क्या होता है, राजधानी एक्सप्रेस, उससे जाता था। एंड वो कर्नाटका और वो सब जो पार होके हम जाते थे ना, जो बैक वाटर्स और जो मतलब ग्रीनरी, वो इमेंसली ब्यूटीफुल। और अभी मैंने 10-12 दिन गोवा में बिताया था। और 10-12 दिन जो मैंने गोवा में, मैंने अनसीन प्लेसेस देखे हैं। तो lot of forest, lot of waterfall, lot of village. Not, I didn't go to like all these touristy beaches and all. So I stayed away from there because any which way थोड़ा सा कोविड का भी टाइम चल रहा था. Hmm. So all that was really beautiful. Ladakh has changed my perception about a lot of stuff. बहुत बहुत ही ज्यादा, और भी ज्यादा हम्बल बना दिया मुझे लद्दाख ने, राइट। उसके बाद अभी कच्छ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने कच्छ नहीं देखा था। दो मैं सिलवासा से हूँ, विच इज नियर गुजरात, बट गुजरात इज ह्यूज इन इटसेल्फ। सो वहां भी हमने टूरिस्ट ही कुछ नहीं देखा। आई हैव सीन ऑल नॉन टूरिस्ट। बेला बाजार नेशनल पार्क वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, गुजरात में है। वन ऑफ द, आई थिंक जहाँ जितनी स्पीसीज मैंने वहां पे देखी बर्ड्स एनिमल्स की, मैंने और कहीं नहीं देखी है। रिसेंटली आई वेंट टू सरिस्का अभी थोड़े दिन पहले। फिर आई वेंट टू अमृतसर फॉर द फर्स्ट टाइम, गोल्डन टेम्पल। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई थिंक मैं 5 किलो तो मेरा वजन बढ़ गया होगा वहां पे, मैंने इतना खाया है। लाइक आई डोंट रियली ईट ऑल ऑफ दो स्टफ, बट बिकॉज मेरा वो फैट लॉस का एक अलग जर्नी है। आई यूज्ड टू बी 92 kgs एंड नाउ आई एम कंट्रोल्ड। नॉर्थ ईस्ट करने का बड़ा मन है। आई हैव नॉट सीन मच ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मतलब मैं कोलकाता में पैदा हुआ हूँ, बट मैंने देखा नहीं है। सो आई वांट टू डू नॉर्थ ईस्ट। या एक मेरा ना, एक पता नहीं ये सही परसेप्शन है या गलत है, या मैं ओवर थिंक करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि until and unless I have seen my country completely, I don't want to go to any other country. Like not like western part of the world. मुझे दुबई जाने की इच्छा नहीं होती, मुझे लंदन जाने का इच्छा नहीं होता, मुझे यूएस जाने का इच्छा नहीं होता। मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिली है बहुत सारी, मैं रिजेक्ट कर दिया, अपफ्रंट रिजेक्ट कर। टोल्ड मी दैट पागल है, who says no to $60,000 and all that। मतलब हाँ ठीक है चल, ठीक है। सो मतलब आईबीएम में था, तो आई गॉट एन ऑफर टू जॉइन द आईबीएम वॉटसन टीम एंड ऑल दैट स्टफ, बट आई कैजुअली सेड नो। आई सेड नहीं जाना है। सो ज्यादा सोचा भी नहीं मैंने, नेवर गिव अ थॉट। सो आई थिंक दैट यार मैं कभी बाहर जाऊं, like let's say if I go to the US or if I go to the UK, or any European country for that matter, कोई मुझे पूछे कि okay what's there in India, I don't want to say Taj Mahal, Lal Killa, Mumbai, this that. I want to tell them stories of villages, right? I want to tell them the stories of like unseen places. I don't know to लोगों का परसेप्शन क्या पता है, इंडिया भीड़, पुअर, गरीब, स्लम, ताजमहल, मंदिर, वो ऐसा। I don't want to say all that. I want to tell them stories, genuine stories of culture, genuine stories of how people live, how they derive this culture. There are different communities. वारली कम्युनिटी है, धोड़िया कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटीज है, इनकी अपनी अपनी कल्चर है, उनके अपने अपने तरीके, तौर तरीके हैं, उनके अपने अपने वेज हैं, आयुर्वेदिक वेज ऑफ ट्रीटिंग थिंग्स। सुपरस्टिशंस है बहुत सारे, टबूज हैं बहुत सारे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स आवर कंट्री वेरी स्ट्रांग, and we should be knowing about all this rather than traveling. So okay, it's good, people should travel in a 5-star property and all that. If you can afford and all, you should definitely travel. मैंने भी किया है। when I've got opportunities, I've also lived in big hotels and I've traveled business class and private jets and all that. I've done all of that. My point is, लेकिन मन नहीं लगता उसमें, मजा नहीं आता, एसेंस खत्म हो जाता है। एंड देन यार वो
जो टपरी पे जाके चाय पीते हुए लोकल लोगों का बात चुपचाप सुन लेना, यू डोंट इवन हैव टू गेट इनटू कन्वर्सेशन, वो साइलेंटली सुन लो क्या बोल रहे हैं आप, एंड देन यू नो लॉट ऑफ दैट प्लेस, यार लोग कैसे सोचते हैं, True, true. मतलब आप में कितने खुश है अपने आप में, कोई एक चैंपियन है, कोई एक चाह रहा है चैंपियन बनने का. So a lot of stories unfold like that. So and I think we should unfold that kind of stories. I was very lucky. I got to travel in Kashmir. I've seen villages in Kashmir. I've very good friends from Kashmir. So बहुत अलग construct है वहाँ पे, right? कोई एक story कश्मीर की that you would Beautiful like to share? people. One of the most beautiful and one of the most like good-hearted people I found in Kashmir. Like अभी हमारे एक दोस्त हैं, he's become mayor of एशमुकाम which is near पहलगाम. जो एशमुकाम पता है क्या है? वो दरगाह है जिसमें वो सलमान खान के मूवी में शूटिंग वगैरह हुआ था ना, वो भर दे झोली जो गाना था, हाँ तो हाँ वहाँ है ना. सो वहाँ के वो मेयर साहब बन गए हैं. तो मतलब सच हम्बल पीपल. वो गुड़गांव भी आए, मेरे घर आए, इतना प्यार से रखते हैं. फयाज मेरे एक दोस्त हैं कारगिल में, मैं उनके घर में 10-12 दिन रहा था, घर में रहा था, और पूरी फैमिली. आई टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी. सो लद्दाख और कारगिल जैसा जगह है और ठंड जगह है, तो उनके डाइट में नॉन वेजिटेरियन फूड होना नेचुरल है, और प्लस वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं तो उनका नॉन वेजिटेरियन फूड का एक कल्चर है. फयाज के अब्बू को, उनके पिताजी को जब पता चला कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, अच्छा 4 दिन उन्होंने अपने घर में नॉनवेज नहीं बनने दी. Sweet. वो नहीं खाते तो हम कैसे खाएंगे, हम सारे वेज. और and I could see in their faces that they did not enjoy vegetarian food, but for me they did that. Who does that? एक दिन क्या हुआ, कैसे स्टोरी कैसे क्रैक हुई कि they made non-veg food normally. और फयाज ने फिर कहा अरे लेकिन पांडे जी तो नॉनवेज नहीं खाते, और उस दिन घर में वेज नहीं बना था. मुझे याद है फयाज की दीदी जो डॉक्टर है, दीदी ran to some neighbor, she somehow managed some dal, some sabji, and she came. And then जब तक वो आया नहीं, nobody ate. And I was like, how will I pay back to these people? Like how? What can I do for them? You know, like this will not happen to you in a 5-star. This will not. मतलब आप जो चाहो खा सकते हो, right? So this is, I think, I'm in debt. Like मैं क्या बोलूं, मतलब इतना ज्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस है. So I think that's beautiful about traveling and unstructured traveling. मैंने तो ऐसे भी किया, पता है, मैं ISBT गया और मैं कहीं ऋषिकेश जाऊंगा, देहरादून जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, और मैं पालमपुर चला गया. बस लगा था पालमपुर में जाकर बैठ गया. हाँ कितना टिकट, 350 लो भाई चलो. मुझे पता नहीं पालमपुर क्या करने जा रहा हूँ. पालमपुर उतरा, सब उतरा, फिर मैं कहाँ जाऊँ, पहले दुकान पे गया, चाय पी रहा हूँ. मैं बोला कहाँ रह सकते हैं यहाँ पे, कुछ देखने लायक बताओ. एंड that's how I've done stuff, you know, and it's fun. If you have any book that you would like to talk about that you're writing in the future. अभी ना मैं, हमारे एक दोस्त है हर्ष पमनानी, वो के साथ एक किताब मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ. It's stories of all these guys, रणवीर, भुवन, all of these. Oh, nice. लोगों की स्टोरीज हैं उसमें, and a lot of branding and marketing idea and all that stuff. So मतलब अभी प्रोसेस चल रहा है, so it will take some time to come out. Awesome. बन चुकी है, बट अब उसको कंस्ट्रक्ट डालना है, और दैट थोड़ा बहुत काम बाकी है, एडिटिंग का काम बाकी है, और दैट वो सब चल रहा है. उसके बाद आई थिंक आई हैव टोल्ड कपल ऑफ प्लेसेस. मेरी इच्छा है एंड आई वुड लाइक दिस कि मैं 40 के बाद काम ना करूं, और मैं फिर यू नो आई टेक अ बैक सीट, गो समवेयर अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक स्टफ, एंड करूं, मैं ध्यान करूं, एंड देन आई राइट समथिंग मे बी. देन that's how I've thought. I hope it happens. I hope it will happen. Yeah, so that's how I've thought. Okay, so wonderful. And when can we expect the first book that you talked about? I cannot tell right now. It will be very over ambitious to say it because चीजें नहीं फाइनलाइज हुई हैं, but हम भी चाहते हैं कि सितंबर अक्टूबर से पहले निकल जाए. Let's see. Okay, let's hope September, October. We'll wait for it. Yeah. Okay, so I would like to ask 2 messages. One for the content creators, like and the scope of content creation in India. Do you think there's going to be a saturation, or is it going to go on? No, saturation never.
इट्स नॉट गोना बी। यदि आप ओरिजिनल हो, यदि आप इंटरेस्टिंग हो, यदि आप ऑथेंटिक हो, यदि आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, तो आप चलोगे। कोई एल्गोरिदम फैल्गोरिदम कुछ नहीं रोक सकता, आप चलोगे। ठीक है। और यदि आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आप मर जाओगे, फिर आप यू विल डाई योर ओन डेथ। यू नो, यू इफ यू कॉपी पेस्टिंग पीपल एंड स्टाइल एंड ऑल दैट, देन यू विल नॉट सर्वाइव। मतलब आप मिलियन सब्सक्राइबर भी पहुंच गए ना, उसके बाद भी आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि ये झूठ जो है सीढ़ी एक टाइम तक ही चलता है, उसके बाद गिर जाता है। Any advice for the content creators, like anything that you would like to give them? I think the lesson comes from that only. Be consistent, be a little, थोड़ा सा pressing है, थोड़ा सा वेरी वेरी अनग्रेटफुल टाइप चीज है तो करते रहो, थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ेगा, बनाते रहो। नहीं आएगा व्यूज कोई बात नहीं, फिर भी डालो, फिर भी डालो, फिर भी डालो, वो सब करो। एंड देन यू नो, आई थिंक स्टे ओरिजिनल, कीप योर ओन फ्लेवर, डोंट कॉपी पीपल। फॉर प्लीज रीड, important, whichever platform you are using, go and read the product document of that। क्रिएटर स्टूडियो को पढ़ो, जाओ इंस्टाग्राम का क्रिएटर स्टूडियो पढ़ो, यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो पढ़ो, स्टडी करो, जो यूट्यूब बोलता है वो करो, जो यूट्यूब बोलता है वो करोगे तो हो जाएगा सब चीज ठीक। फॉलो करो, वो जैसे बोलते थंबनेल ऐसे बनाना वैसे ही बनाओ, वो बोलते हैं वीडियो का लेंथ ये होना चाहिए वैसे ही रखो, चुपचाप रखो यार। वो दोस पीपल आर ब्रिलियंट, दे हैव ऑल गिवन यू ऑल टूल, हम इग्नोर कर देते हैं, हम देखते नहीं हो सब। How many creators have gone and studied creator studio and all that stuff? नहीं कुछ नहीं पढ़ता। Should go and study all that। बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा फ्री कंटेंट है, कितने सारे चैनल्स हैं जो इतनी इंसेन कंटेंट देते हैं और वो अंडररेटेड है। वाई कॉम्बिनेटर देख लो, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू देख लो, अभी रणवीर के पॉडकास्ट देख लो, इतने इंसेन पॉडकास्ट हैं। और अभी वो कुछ एक ऐसा अतरंगी व्लॉग डालेगा तो उसमें ऐसा मिलियन व्यू आ जाएगा, और पॉडकास्ट डालता है तो उसमें 100 के आता है, 200 के आता है। लोगों को सीखना ही नहीं है, तो ये लोगों का प्रॉब्लम है, रणवीर का प्रॉब्लम थोड़ी है। रणवीर तो अपना काम कर रहा है, वो करेगा, है ना। Right. वही फालतू कुछ डाल दो तो उसके बढ़ जाते हैं, उसके व्यूज आ जाते हैं, लोगों को सब ब्रेनलेस कंटेंट देखने की आदत है लोगों को। आई फील वेरी सैड समटाइम्स, एंटरटेनमेंट के नाम पे ब्रेनलेस कंजम्पशन ऑफ कंटेंट, हॉरिबल। डोंट फील गुड अबाउट इट। Yeah, exactly. I mean, when I post podcast, there are so many stories. Like, the aim was to get people to know about the people that I knew. क्योंकि मुझे नहीं पता था तो मैं नहीं change कर पा रही थी अपनी life. And when I got to know करेक्ट। about them, so I started working on those things. And anywho, so sir, any last message for our listeners? And I'll put up a link to connect to Manish sir. So do check that out in the description box below. And any last message that you would like to give to our listeners and viewers? I think be grateful for what you have. Be very very grateful to your parents. Be very grateful to your school teachers. You know, college I don't vouch for because मैं गया नहीं हूँ खुद so मुझे कॉलेज का नहीं पता, बट यार स्कूल टीचर्स के लिए ग्रेटफुल रहो, फ्रेंड्स के लिए ग्रेटफुल रहो, मेहनत करो। सक्सेस डज नॉट कम इजी, इट्स टफ, but if you're persistent it comes, so be persistent, you know, लगे रहो। That's what I want to say, because and ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि because मैं ये करता हूँ, you know, I follow this, so that's why I can only tell you what I do, right? So that's simple यार, simple है, cannot be like ऐसे big words and all मुझे नहीं आते, you know, so this is what it is, so yeah, that's all I guess. So, a last question in spirituality only. Sometimes people Sure. think ki the people that make money and are financially successful cannot be spiritual. Spirituality means only to be a yogi, ki sab chhod diya and that you're going to the jungle, and that's what spirituality is. So, what is your take in that in this? It's a myth. I think anybody can be spirituality with money, without money. Money is a construct. My point is, यदि वो पैसा आपके सर नहीं चढ़ाए तो आप स्पिरिचुअल हो यार। आई मीन देयर आर एनफ एग्जांपल्स यार, बिल गेट्स को देखो, आई मीन कितना फिलैंथ्रोपी करता है, यू नो, ऑल ऑफ दिस गाइस, यू नो। आपको क्या लगता है इलॉन मस्क स्पिरिचुअल नहीं है? वर्ल्ड की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, स्पिरिचुअल नहीं होता थोड़ी करता है सब प्रॉब्लम, पैसे के लिए थोड़ी कर रहा है, वो तो पैशनेट इंसान है। वो तो बाय द वे बाय प्रोडक्ट वो बन गया अमीर, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी जो भी है। हाँ, वो उसने इलेक्ट्रिक कार बनाई है, वो कार्बन कंजम्पशन कम हो गया है, स्पिरिचुअल काम है वो। सो ऐसा नहीं है कि यू नीड टू बी लाइक एकदम आप भगवा पहन के सफेद पहन के जंगल चले जाओ तभी स्पिरिचुअल, वो नहीं, वो तो एक वे ऑफ लाइफ आप चूज करते हो, दैट्स ऑल, यू नो। आप वहां भी बैठ के शायद ना कर पाओ कुछ, वो भी हो सकता है, राइट? सो इट्स नॉट दैट, आई डोंट अग्री विद दिस थिंग कि यदि आप पैसे पे फोकस कर रहे हो, यदि आप धन बना रहे हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। डेफिनेटली हो सकते हो आप, यू नो,
definitely होते हैं लोग, right? So I don't agree with that, but yeah, that's my answer. Yeah, wonderful one. And that's and this is the end of the interview, sir. So thank you so much for giving your time to this podcast, and I am very grateful and honored to have you on Inspiring Explorers. Thanks, Meenakshi. I had a wonderful time. It was not a work call, so it was good. Otherwise, Thank you. meetings और ये वो होते हैं, so yeah, I think it was great. So yeah, fun. Thank you so much for inviting me. So this was Manish sir's inspiring life journey so far and some amazing travel experiences. Thank you so much for giving your precious time to this podcast. If this episode was inspiring and insightful, please do drop a comment on my Instagram and YouTube at @mybohovoyage. Also do check out my YouTube channel at @mybohovoyage for the video version of this episode. Please do subscribe and give a 5-star rating and hopefully write a review for Inspiring Explorers. Also, please don't forget to connect with me on Instagram and YouTube. Drop me a hi or send me a comment so that I know we are in this journey together. This is Meenakshi Srivastava, your host for Inspiring Explorers, saying goodbye. See you next week with an amazing, inspiring interview. Till then, take care.